Okay, good evening, children. So yesterday's class we have studied about amino acetylation of tRNA. Okay, how a tRNA picks a particular type of amino acid, and we also studied that there are 61 type of tRNA because 61 type of codons are there which are coding for different type of amino acid. 3 codons are there which are having no amino acid, and that is why they are also known as nonsense codon, or they are also sometimes termed as stop codon. Okay, because when in the messenger RNA one of these codon will come, that means the process will be stopped there because there is no respective tRNA will come there. tRNA has two functions. tRNA is actually reading the messenger RNA, and tRNA bringing a particular type of amino acid. Both the function, that is, it is the tRNA which is reading, and it is the tRNA which is loading a particular type of amino acid and bringing it. In the amino acetylation of tRNA, we have studied that energy of 2 ATP is consumed, and it is this energy which will be used for the translation process. No ATP is used there. So the energy of 1 ATP into 1 AMP while charging the tRNA is already spent there. That same energy will be there, that will be used in continuation of the polypeptide chain. The process of protein synthesis we are going to study today. Okay, how protein synthesis take place and what are the complications, what are the role of the different type of RNAs, and how this particular chain continues. It is also completing in 3 steps. That is, first is that is initiation, then elongation, and then termination. Okay, let us study them one by one. Now messenger RNA we already studied that, which is actually prepared in the nucleus from the DNA, that is by a process called transcription. And then we also studied that in eukaryotes the messenger RNA which is produced is usually immatured, which is also known as heterogeneous nuclear RNA, which later on matured by a process called splicing. And once the splicing is done, the mature RNA is formed, then it will be transferred. That is actually in the nucleus, in the cytoplasm also already. And then the ribosomal RNA comes and attached on it. How that process carried out, that we are going to study today. So let me share the book. So this is the chapter 6 here. Okay, and these all things we are done. Frame shift we are done. tRNA we have studied yesterday. Translation we have to start today. Okay. So here we are to study translation, and in translation process, translation कहते हैं that is एक RNA से प्रोटीन बनने को, RNA की जो information है that is changing into a polypeptide, that is called translation. ठीक है? So this is called translation. Now translation कैसे होता है, that we are studying here, and in fact we already know that that different type of RNAs which are used in this process, है ना, and their role क्या क्या है, that we already studied. कहाँ गया eraser? क्लियर कर देते हैं. गजब है. ओके, सो हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है, एमिनो एसिटिलाइजेशन कैसे होता है. इसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज कैसे वो प्रोसेस हुआ था, हमने पढ़ा था. दैट इज एक टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए एक एटीपी से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, एंड इट फॉर्म टीआरएनए एएमपी कॉम्प्लेक्स. 2 phosphates are released from here, and then tRNA AMP
वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो भी अमीनो एसिड के लिए वो बना उससे कंबाइन करेगा एंड टीआरएनए एएमपी नहीं अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एएमपी विल बी रिलीज्ड. So this is how a tRNA will be charged with particular type of amino acid. जो भी उसका कोडोन होगा उसके हिसाब से वो खास तरह का amino acid को लेके जाएगा. We already studied that the 61 codon which are found there, each codon is specific to a particular amino acid. ठीक है. एक से ज्यादा टीआरएनए हो सकते हैं जो कि खास एमिनो एसिड को ला सकते हैं. ये भी हमने पढ़ लिया था. कोडोन अपन पढ़ चुके हैं पूरा. So I don't think I should go ahead with the codon anymore. So यहाँ से पढ़ते हैं how the process begins. The cellular factory responsible for the synthesis of protein is ribosome. Protein synthesis कहाँ पे take place होता है? In ribosome. We already studied about the ribosome in the class 11th in chapter 8. अबाउट सेल जब अपन ने पढ़ा तो हमने पढ़ा राइबोसोम है. राइबोसोम जो होते हैं एक स्मॉल और एक बड़ी यूनिट के बने होते हैं. 2 सब यूनिट्स के बने. एंड वी आल्सो स्टडीड जो राइबोसोम्स होते हैं they are membraneless organelle and they are found in the cytoplasm as well as nucleoplasm as well as chloroplast as well as in mitochondria. तो इसकी यूनिवर्सल अपीयरेंस रहती है, सभी जगह पे मिलता है. The ribosome consists of a structural RNA and about 80 different type of protein. राइबोसोम में मेनली क्या होता है? स्ट्रक्चरल आरएनए है. ठीक है. राइबोसोम इज एक्चुअली आरएनए एंड इसमें 80 अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं एंड इट इज an inactive it's a inactive state. It exists in 2 subunits. ठीक है. एक large subunit है and a small subunit. When the small subunit encounter messenger RNA, ये बोल रहा है कि जब small subunit messenger RNA के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? The process जो था वो begin होता है. ठीक है. So small subunit encounters the messenger RNA. तो हम यहाँ पे एक messenger RNA ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारा मैसेंजर आरएनए पर ड्रॉ हो रहा है वैसे तो. अब इस मैसेंजर आरएनए में कई तरह के नाइट्रोजन बेसेस हो सकते हैं. ठीक है. और यही कोडोन होते हैं. ये भी अपन ने पढ़ा. ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है. ठीक है. मान लीजिए यहाँ सी है, ए है, जी है, सी है. यहाँ ए है, फिर यू है और फिर जी है. यहाँ सी है. फिर यहाँ यू है. ठीक है. सी है और फिर यहाँ ए है. ठीक है. तो मैसेंजर आरएनए का जो स्मॉल सब यूनिट है वो कहाँ से एंटर करेगा? वो 5 एंड से एंटर करेगा, इस साइड से. ठीक है. एंड वो इस साइड से मूव हो रहा है वेयर इट एनकाउंटर्स फर्स्ट AUG. ये दिख रहा है आपको AUG. यहाँ पर आकर के वो लगेगा. और कैसा लगेगा? इस तरह से लगेगा कि इट विल हैव 2 सब यूनिट्स, 2 कोडोन. पहला कोडोन AUG, दूसरा कोडोन CCC. इसमें एक स्मॉल सब यूनिट में 2 साइट होती है, एक P साइट और एक A साइट. जब स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स का आके मैसेंजर आरएनए पे लग गया तो उसको हम कहते हैं इनिशिएशन. ठीक है. AUG से पहले भी कुछ फालतू चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये किसी काम के नहीं है. इनको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजंस. ठीक है. जो किसी भी आरएनए में AUG से पहले और UAA या UAG और UGA जो स्टॉप कोडन उसके बाद में होते हैं, वो सब जो है ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं. ये सारी जो चीजें हैं वो बेकार हैं. इनको हम कह देंगे UTR, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन. ठीक है. लेट अस स्टडी. यहाँ से क्या कह रहा है देखिए. व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स मैसेंजर आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस. ठीक है. यहीं पे आकर के प्रोसेस बिगिन हो जाता है. ओके. द प्रोसेस जो है यहाँ पे बिगिन हो गया. कहाँ पे बिगिन हुआ? जब वो जाकर के मैसेंजर आरएनए पे आकर के लगता है.
there are two sites in the large subunit. Large subunit जब आकर के लगेगा इसके ऊपर, पहले स्मॉल सबयूनिट लग गया, उसके बाद लार्ज सबयूनिट भी आकर के लग जाएगा। तो हमने कहा जो ये दो साइट हैं, पी साइट एंड ए साइट, वो लार्ज सबयूनिट में, ठीक है। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सबयूनिट, द सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड thus be close enough to one another। ये देखिए पी साइट और ए साइट जो है एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, close enough to each other for the formation of peptide bond। The ribosome also act as catalyst। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आरएनए है वो कैटलिस्ट होता है ना, सेल्फ कैटेलिटिक होता है। और क्योंकि राइबोसोम जो है उसके अंदर मेनली आरएनए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज उसके अंदर क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल आरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम काम नहीं आ रहा है, ये सारा जो है आरएनए से कैटेलाइज हो रहा है। तो राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, दैट इज 23S आरएनए जो है इन बैक्टीरिया इज एंजाइम राइबोसोम, ठीक है। तो ये खुद ही जो है वो एंजाइम की जैसे भी काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इतना आगे आपको समझ में। अब आगे क्या, आगे क्या, दैट इज देखिए द ट्रांजिशनल The transitional unit of messenger RNA in a sequence of tRNA is flanked by start codon AUG। तो ये प्रोसेस जो है वो खास तौर से एक जगह से शुरू होगा, उस जगह को हमने कहा है दैट इज AUG। एक कोडोन चाहिए, वो कोडोन कौन सा है, द प्रोसेस विल बिगिन एट AUG। कहाँ चला गया, तो AUG को हमने पहले भी कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, जब हम कोडोन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि AUG एज ड्यूल फंक्शन, वो इनिशिएटर की जैसे भी काम कर रहा है, स्टार्ट कोडोन के जैसे भी काम कर रहा है, और इसके अलावा वो बीच में जहाँ पे भी आएगा तो मिथ्योनाइन के लिए स्टैंड करेगा। तो देखिए फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए, नहीं पहले अपन यहाँ पढ़ रहे थे, स्टार्ट कोडोन दैट इज AUG, एंड स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो अपन ने तीन तरह के पढ़े हैं। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, दैट इज UAG है, UGA, एन UAA है, ठीक है। तो ये पढ़े, एंड मैसेंजर एन mRNA also has an additional sequence that is not translated and referred as the untranslated region। तो मैंने आपको बताया untranslated region कौन से हैं, वो पहले AUG 5 साइड से जाएंगे, तो पहला AUG जाएगा, उसके पहले वाले जो भी हैं वो, और यहाँ पे UAA और उसके आगे वाले, क्योंकि इनको ट्रांसलेट नहीं करना है तो इन सबको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कह देंगे। द UTR आर प्रेजेंट इन बोथ, दैट इज द 5 एंड एंड 3 एंड, दोनों साइड में। अब आप पूछेंगे कि सर जब उनको ट्रांसलेट ही नहीं करना है तो इसकी जरूरत क्या है, तो ये लिखा हुआ इसके आगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। वो डीएनए अगर मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल स्ट्रेट अवे AUG से चलता है, ड्यू टू सम रीजन और अदर कोई पार्ट उसका डैमेज हो जाता है, तो प्रोसेस वुड दैट मैसेंजर आरएनए वुड नेवर यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक तरह से ये उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से वो उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और एक तरह से वो उसकी एफिशिएंसी को भी मेंटेन करके रखा है, ठीक है। फॉर इनिशिएशन the ribosome binds to mRNA at start codon AUG। तो सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए हमारा कहाँ पर आ गया है, वो मैसेंजर आरएनए इस जगह पे आ गया जहाँ पे AUG लगा हुआ है, ठीक है। तो AUG लगा है, वो वहाँ पे आ जाता है ये, एंड रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटेड tRNA। तो ये इनिशिएटेड tRNA इसके ऊपर आ जाएगा, AUG के ऊपर इसका एंटीकोडोन क्या होगा, ए के ऊपर यू होगा, यू के ऊपर ए होगा, और जी के ऊपर सी होगा, और ये किसको लेके आया, मिथ्योनाइन को लेके आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कोडोन जो है वो क्या है, CCC। तो अनदर tRNA जिसके ऊपर एंटीकोडोन GGG है, GGG वो यहाँ है, और CCC स्टैंड करता है आई थिंक प्रोलाइन के लिए। जरा देख के बताएं बच्चे, CCC किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आई थिंक प्रोलाइन के लिए स्टैंड। यस सर। हाँ, तो ये इधर आ गए।
नाउ जैसे ये दो टीआरएनए अलोंग विथ देयर मैसेंजर आर अलोंग विथ देयर एमिनो एसिड कम टुगेदर, तो क्या होता है, इमीडिएटली बॉन्ड बन जाएगा, इमीडिएटली बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जैसे इसके बीच में बॉन्ड बना तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, दिस विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है ना। पहले मैसेंजर आरएनए का स्मॉल क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए का स्मॉल सब यूनिट आया, 5 एंड से घुसा, उसने एयूजी जहाँ पर है उसको लोकेट किया और वहां पर आकर लग गया, इस तरह से कि पी साइड के ऊपर एयूजी और ए साइड पे जो है नेक्स्ट वाला कोडोन आ जाए, फिर लार्ज सब यूनिट आके उसके ऊपर लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशिएशन। नेक्स्ट जो है, पहला वाला जो एयूजी है उसको रीड करता हुआ टीआरएनए आया मिथेनाइन को लेके, दूसरा वाला कोडोन है उसको रीड करता हुआ दूसरा टीआरएनए आया अलोंग विथ इट्स एमिनो एसिड, and they come closer, जैसे no sooner they come closer the bond will form between the first and second amino acid and the first tRNA will be freed। क्योंकि क्या कहते हैं एमिनो एसिड है, उस वो या तो वो इससे जुड़े या इससे जुड़े, है ना। जिस कार्बन से वो इससे अटैच्ड है उसको छोड़ेगा तभी वो इससे बन सकता है। तो जैसे इसने इसको छोड़ा वो इससे बन गया और ये फ्री हो गया। जैसे ये फ्री होता है इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, मैं दूसरी चेन बना देता हूँ यहाँ पे। ये अपने पर्पल कलर में लिया है मैसेंजर आरएनए, ये हमारा मैसेंजर आरएनए आ गया। अब यहाँ हमारा एयूजी था, मैं थोड़ा सा एयूजी को यहाँ सरका लेता हूँ, ये हमारा एयूजी था और यहाँ सीसीसी था। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, यू 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 यू, ये यू है, ये यू है और ये यू है। अब अपना ये जो जो राइबोसोमल यूनिट है वो यहाँ से एयूजी को छोड़ करके आगे बढ़े। ठीक है, एयूजी जो है वो पीछे रह गए और द द राइबोसोम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ गई। अब हमारे पास यहाँ पे अपनी चेन लगी हुई है, रेड कलर में लिया हमने इसको, ये हमारी चेन लगी हुई है जिसमें दो बॉन्ड आ रहे हैं, मिथ्योनाइन एंड प्रोलाइन। अब यू 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 के ऊपर फेलेलाइन होता है, पी एच ई, जैसे ये आएंगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये फ्री हो जाएगा। जैसे ये फ्री हुआ फिर दिस राइबोसोम जो है इसको सीसीसी को छोड़ करके यू 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 और नेक्स्ट क्या है अगेन आगे सीसीसी है तो वो इस तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता 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 जो है तब तक पहुंच जाएगा जहाँ पे कि कम से कम कोई एक स्टॉप कोडॉन मिल जाए इसको। तो दिस प्रोसेस, पहला प्रोसेस जहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट आके लगे थे उसको हमने इनिशिएशन कहा। फिर यहाँ पे जो ये चेन बन रही है इलोंगेशन ऑफ द चेन, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। एंड जब वो इट एनकाउंटर्स वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन, इट मे बी UAA और UAG और UGA, जहाँ पे ये आ जाएंगे वहां पे ये प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि कोई रेस्पेक्टिव टीआरएनए नहीं आ रहा। ठीक है, एंड देन द न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, कौन सी है पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी रिलीज। टीआरएनए तो एक एक करके रिलीज होते ही जा रहे हैं, है ना। ये वाला रिलीज हुआ, ये मैसेंजर मतलब जो राइबोसोम है हमारा वो आगे बढ़ जाएगा, फिर वो रिलीज होगा और आगे बढ़ जाएगा और रिलीज होगा आगे बढ़ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू द स्टॉप कोडॉन, तो सिंस देयर इज नो टीआरएनए कमिंग तो वो प्रोसेस जो है वहीं पे रुक जाना है। तो देखते हैं और पूरा प्रोसेस इसने इतनी छोटी सी जगह के अंदर समराइज कर दिया। फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड द मैसेंजर आरएनए एट स्टार्ट कोडॉन AUG and recognized only by the initiated tRNA. The ribosome proceed to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, the complex compounds composed of amino acid linked to tRNA, ठीक है, टीआरएनए से वो जुड़ा हुआ, वो पहले ही अपन एमिनो एसिटिलाइजेशन में पड़ गया, sequentially bind to the appropriate codon of messenger RNA by forming complementary base pair। ये base pair है, that is UGA जो है UAC से बाइंड करेगा, CCC जो है वो GGG से बाइंड करेगा एंड ऑल। ठीक है, तो ये बेस पेयर के हिसाब से यहाँ पे आते जाएंगे और लगते जाएंगे। ठीक है, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, ये पहले इधर था फिर इधर मूव कर दिया फिर इधर करेगा फिर इधर करेगा, ऐसे मूव करते जा रहे हैं, है ना। एंड द चेन जो होती है वो इलोंगेट होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो forming complementary base with the tRNA and the ribosome move from codon to codon along the messenger RNA। एमिनो एसिड्स आर ऑल्सो एडेड वन बाय वन, तो यहाँ पे ये एमिनो एसिड 1 2 3 फिर आगे जुड़ते चले जाएंगे 5 6,
100, 200, 1000, 2000, 50,000, 20,000 जो भी है उसका नंबर, उस हिसाब से वो जुड़ते चले जाएंगे. अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ट्रांसलेटेड into polypeptide sequence detected by DNA and represented by messenger RNA. कहाँ से आया ये चेन? ये चेन DNA से आई है, ट्रांसक्राइब बाय DNA. सो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन कहाँ थी? DNA में, और DNA से कहाँ है? RNA में, मैसेंजर RNA में, एंड फ्रॉम मैसेंजर RNA वेयर इट इज गॉन टू पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो डिटेक्टेड बाय द DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर RNA. एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन. रिलीज फैक्टर होगा कोई, वो जाकर के स्टॉप कोडोन पर लगेगा एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम. ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर. आपको समझ आ गया ये? आया है, नहीं आया Sir, यार? please repeat the हाँ, process. रिपीट द प्रोसेस. वेरी गुड. इतना जेंटली कोई पूछने वाला होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको स्टॉप शेयर करते हैं और एक स्क्रीन ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड. ठीक है, यहाँ हमारे पास में मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए पे कई सारे कोडोन्स लग रहे हैं. ठीक है, हमने जो है कोई सा भी कोडोन हो सकता है यहाँ पे. यहाँ मान लीजिए सी है, यहाँ जी है, ये जी है, सी है, जी है, ए है, यू है और जी है, सी है, सी है, सी है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि हमको सारे याद नहीं रखने, इसलिए हमने एक दो को याद कर लिए. ठीक है, ए, यू, जी, 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 है ना? कोई से भी मतलब हो सकते हैं ये. और लास्ट में मान लीजिए एक कोडोन ये हो गया, 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 और यहाँ मान लीजिए अपन यू ए जी लगा देते हैं, और उसके बाद कुछ भी लगा दीजिए आप, जी, जी, सी, ए, यू. ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं. नाउ हम सब, ये मैसेंजर आरएनए अपने पास है ऑलरेडी. अब क्या होगा? सबसे पहले एक स्मॉल यूनिट जो है राइबोसोम की, वो इसके ऊपर ट्रेवल करेगी 5 एंड से. ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है. स्मॉल यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो यहाँ से घुसेगी. ये यहाँ से घुसी है, इट विल कीप ऑन मूविंग. ठीक है, कहाँ तक मूव करेगी? जब तक ये एयूजी कोई कांटेक्ट में नहीं आ जाए. जैसे ही एयूजी के कांटेक्ट में आती है, यहाँ पे आकर रुक जाता है. जब ये एयूजी के कांटेक्ट में आकर के यहाँ रुक जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनिशिएशन. ठीक है, 5 एंड से इट एंटर्स, एंड पहला, अरे यार इसका पहले एयूजी तो यहाँ पे था. ठीक है, इसको मैं कुछ और बना देता हूँ. मैं, क्योंकि अब अपन ने गलती करी दी है, तो इसको कुछ और लिख देते हैं. तो हम इसको कहते हैं कि ये, तुम कहाँ से आगे, ये मान ली सी है, तो सी यू जी था, एयूजी पहला यहाँ पर है. जहाँ एयूजी आएगा वो इनिशिएटर है, वहां पे आकर के लग जाए. देन नेक्स्ट क्या होगा? ये हमारा मैसेंजर आरएनए, और इससे पहले का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाली जो चीजें ट्रांसक्राइब नहीं होगी, तो इसको हम यूटीआर कह देंगे, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन. ये काम नहीं आने वाले. यूएजी और इसके बाद वाले भी काम नहीं आने वाले, तो इसको भी हम यूटीआर कह देंगे. ये भी बेकार है. जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो यहाँ से लेकर के यहीं तक है, यही जो है ट्रांसलेट होना है. इसके आगे और पीछे का कोई ट्रांसलेट नहीं होंगे. एयूजी वाला यहाँ पर लग रहा है अपना एयूजी. दूसरा क्या है? जी, जी, जी. ये हमारा ए यू जी, 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 जी. और इसके ऊपर हमारा राइबोसोम लग गया है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट. नो सूनर लार्ज एंड स्मॉल यूनिट दोनों दोनों आ जाते हैं, फिर क्या होगा? हमारा टीआरएनए लोडेड विथ मेथियोनाइन विल अटैच एट दिस एयूजी. वैसे तो उसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में वैसे दे रखा है, अगर चाहो तो वैसे भी बना सकते हैं. बुक वाला कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कैसे दे रखा है, वो अभी जो नई बुक आई है उसके अंदर वो इस तरह से दे रखा है. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ मेथियोनाइन लगा दो, और ये एयूजी का जो है एंटीकोडोन यहाँ लिखा होगा UAC.
फिर जो नेक्स्ट टीआरएनए है वो यहाँ पर आ गया। जीजीजी पे क्या होता है बच्चे दिखाएं। कोडोन किसका है? ट्रिपल जी। ग्लाइसिन। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ग्लाइसिन आ गया। ठीक है, तो जैसे ही ग्लाइसिन और मिथ्योनाइन एक दूसरे के अगल बगल में आता है, अ बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम। अ बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम। से फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉन्ड आ गया है इसके बीच में। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, नेक्स्ट क्या होना है? दिस विल बी रिमूव फ्रॉम ईयर, AUG फ्री हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ GGG, ये हमारा GGG है। और इसके बाद नेक्स्ट कोडन से फॉर एग्जांपल हमारे पास CCC है। तो राइबोसोम यहाँ से आगे बढ़ गया। जिस तरह से आपकी सुइंग मशीन में एक स्टिच लगते के साथ मशीन आगे बढ़ जाती है या कपड़ा आगे बढ़ जाता है ना? तो यहाँ पे ये हमारी सुइंग मशीन मान लीजिए, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सुइंग मशीन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लॉथ। तो वहां पे क्लॉथ आगे बढ़ता है, हमारे केस के अंदर मशीन आगे बढ़ रही है। बस इतना सा फर्क है, क्लॉथ विल रिमेन देयर। तो ये तो अपना आगे बढ़ गया, और यहाँ पे हमारा मैसेंजर RNA है ना। मैसेंजर RNA को हमने ब्लू कलर से बनाया था। ये हमारा मैसेंजर RNA। अब इसमें दो एमिनो एसिड आ गए हैं, मिथ्योनाइन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, CCC जो है उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप का TRN आ जाएगा। आई थिंक इट इज प्रोलाइन। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये आ गए। अब जैसे ये दोनों साथ आते हैं, अब बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम। जैसे ये बॉन्ड बन जाता है, जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये फ्री हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। अब हमारा मैसेंजर RNA हम यहाँ ले लेते हैं। ये राइबोसोम जो है ये GGG को छोड़ करके CCC पे आ जाएगा। P साइड जो है वो पहले P साइड AUG था और ये A साइड था। अब P साइड ये हो गया और ये A साइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये P साइड हो जाएगा कौन सा? CCC। तो CCC इज द P साइड एंड ये A साइड के ऊपर मान लीजिए अब यहाँ पे UUU है। ठीक है, तो हमारा ये राइबोसोम यहाँ आ गया। वो ये वाला हट गया। अब अपने पास जो है यहाँ पे इसके पास में क्या है? मिथ्योनाइन जुड़ रहा था, ग्लाइसिन जुड़ रहा था, प्रोलाइन जुड़ रहा था, और UUU के पास फेलेनाइन वाला कोई TRN आ जाता है, PHE। ठीक है, जैसे ये पास आएंगे इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड until it encounter any one of the stop codon। जैसे स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन कौन सा है? UAG है, या फिर UGA है, या फिर UAA है। इनमें से कोई एक आ जाएगा तो प्रोसेस विल टर्मिनेट देयर। वहां पे जो है वो मतलब स्टॉप वाला जो है फैक्टर लगेगा और ये न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड को रिलीज कर देगा और राइबोसोम भी वहां से निकल जाएंगे एंड देन राइबोसोम विल लुक फॉर नेक्स्ट mRNA। ठीक है, या फिर इसी mRNA को दोबारा से वो क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? आप अगर सर एक YouTube। हाँ सर एक मतलब वो वाला प्रोसेस भी तो होता है ना जिसके अंदर एक ई भी आता है, ई पी और ए करके होता है वो कुछ। तो हाँ, जैसे आप इसमें दो है तो हम्म, उसमें तीन होते हैं वैसे। देखिए ऐसे तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं। हमको तो 12th क्लास पढ़नी है अपनी बुक के हिसाब से। ठीक है, अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नाउ ऐसा थोड़ी है कि इतना सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज गिवन इन आवर कोर्स दैट वी हैव स्टडीड है ना, ऐसा तो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे लग रहे होंगे। तो 12th क्लास के लेवल पे अपन को जो पढ़ना है जो अपने कोर्स में है वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी इसके अंदर। अपने बुक में जितना दिया उतना पढ़ लिया, कोर्स में यही है, एग्जाम में यही आएगा।
ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सारा क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा कि ई फैक्टर क्या है, पी क्या है, ए क्या है और कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। लेकिन अपना जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, उसके अंदर अपन को कुल मिला के यही चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट वी वांट टू नो इज, जो हमारा जो द प्रोसेस है ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें हमको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज इनिशिएटर, व्हाट इज टर्मिनेटर, है ना, क्या इनिशिएटर होता है, क्या टर्मिनेटर होता है, और कैसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनिशिएशन कैसे हो रहा है, इलोंगेशन कैसे हो रहा है, नया बॉन्ड कैसे बन रहा है, पी साइड क्या है, ए साइड क्या है ना। ये देखिए इतनी बड़ी चेन बनी है और इस दोनों का बॉन्ड बना है। ठीक है, फिर ये नया वाला टीआरएनए आकर के यहाँ लग जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। दिस विल गो ऑन, है ना, ये चलता रहेगा, तब तक चलेगा कब तक, जब तक ये टर्मिनेटर नहीं आ जाए। जहाँ टर्मिनेटर आ जाएंगे तो अपने से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना इसमें, वो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। अपने वो पूछेंगे कि भाई इनिशिएटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, इलोंगेशन कैसे होते हैं, और पूरा हो सकता है कि मतलब डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आप बता देंगे कैसे होगा पूरा प्रोसेस इन्हीं स्टेप्स के अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है यूटीआर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एयूजी का रोल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं, रिलीज फैक्टर क्या है ना। तो यही चीजें पूछने वाले हैं आपसे, फालतू चीजें मतलब अपने को ज्यादा पढ़ने का झंझट नहीं पालना है। ठीक है, एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज व्हाट इज द कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट क्या है, तो हमको यहाँ पे क्लियर कट दिखा रखा है यहाँ पे कि इसमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट क्या है। The catalyst is actually RNA itself is acting as ribosome is also acting as a catalyst। ठीक है, तो ये खुद ही जो है वो कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा, थोड़े टाइम तक वहां पर रहेगा और उसके बाद में वो हट जाएगा। तो इसमें कोई 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 खास तरह के प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रही है अपन को। जब तक राइबोसोम वहां पर है वो कैटलिस्ट के जैसे काम करेंगे, वो आगे बढ़ गया, वो कैटलिस्ट का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये समझ आ गया होगा, इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और यस सर। there are number of videos available on the YouTube, तो वहाँ पे आप इसको इसको आप जो है मतलब बिल्कुल एक फ्लो में देख सकेंगे। तो देख लीजिए, छोटी सी वीडियो, छोटी छोटी बहुत सारी, दो तीन, ज्यादा बड़ी मत देखना, 3 मिनट 2 मिनट वाली जो वीडियोस हैं दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जो है एक नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मीटिंग तो मैं बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉप शेयर एंड मीटिंग। ओके, तो अपन ने ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ लिया। एक बात समझ लेते हैं कि अपन ने बहुत बड़ा एक काम समझ लिया है, मतलब बहुत बड़ी चीज समझ ली है कि दैट इज हाउ हाउ जेनेटिक्स वर्क्स। ठीक है, अभी तक अपन को यही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक करेक्टर कंट्रोल होता है। अब हम जो है मतलब उसको काफी हद तक समझ चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड कि एक्चुअली देयर इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन डीएनए, है ना, एंड फ्रॉम डीएनए फ्रॉम डीएनए इट गोज इनटू आरएनए, और फिर आरएनए के 3 टाइप हैं, वो उनको मिला करके जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जो होते हैं दे कैन एक्ट एज एन एंजाइम। नेट स्लो हो गया क्या? तो ये हमारा डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना था, और आरएनए ने जो है खास तरह के पॉलीपेप्टाइड बनाए। नाउ वी कैन नॉट से दैट वो पूरा एंजाइम प्रोटीन बना रहा है, तो वो पॉलीपेप्टाइड बना। नाउ पॉलीपेप्टाइड 1 और 2 दे में एक्ट एज एन एंजाइम एंड दे में कंट्रोल ए पर्टिकुलर प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं है कि डीएनए से आरएनए बन के पॉलीपेप्टाइड जो बन रहे हैं वो किसी प्रोसेस को ही कंट्रोल करे। इवन मसल्स बनाने हैं, एंजाइम बनाने हैं, they all also carrying with the same process। ठीक है, तो जहां जहां प्रोटीन बनाना है उसके लिए यही वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। हाउएवर दिस इज आल्सो अ वे ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटी। नाउ इतना तो हमको समझ आ गया। नाउ मान लीजिए कि अपनी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम बनाने हैं वो बना लेंगे, जरूरत नहीं है तब भी बन सकता है। हाउ विल डीएनए डिसाइड कि कौन सा एंजाइम कब बनाना है? हाउ विल इट कम टू नो कौन सा एंजाइम कब बनाना है? ये तो एक बड़ा मुश्किल काम हो गया। ठीक है,
हमको ये जानना है कि आंख आंख की जैसे काम कैसे करती है, हाथ की जैसे क्यों नहीं करती, स्किन स्किन की जैसे काम क्यों करती है, लीवर की जैसे क्यों नहीं करती, लीवर लीवर की जैसे काम करता है वो स्टमक की जैसे क्यों नहीं कर रहा है ना। लीवर में अगर हम कहते हैं कि वो बाइल जूस बन रहा है, तो वो बाइल ही क्यों बना रहा है, HCl क्यों नहीं बना रहा है, HCl भी बनाना चाहिए उसको, क्योंकि जीन तो सारे हैं ना। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ जीन्स कितने, मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, 46 क्रोमोसोम के अंदर अगर मैं मानता हूँ 40,000 जीन्स हैं, तो 40,000 जीन्स इसमें भी हैं, 40,000 जीन्स इसमें भी हैं। अगर ये अगर लीवर की सेल है तो इसमें भी 40,000 जीन है, और ये स्टमक की सेल है तो उसमें भी 40,000 जीन है। तो अगर इस जीन में बाइल बनाने का फंक्शन है तो इसमें भी है बाइल का फंक्शन, और इसमें HCl का फंक्शन है तो इसमें भी HCl का फंक्शन। So what is stopping it to produce HCl and what is stopping it to produce bile? कॉम्प्लेक्सिटी खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा था, मैंने कहा कि किसी भी दिन हम ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि हमने जेनेटिक्स पूरी पढ़ ली है, हमको सब समझ आ गया, अब हमको जेनेटिक्स के अंदर कुछ बचा नहीं है। ठीक है, विल वी नेवर इन ए स्टेट टू से। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे समझेंगे हम इसको? हाँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया हमारे पास में। इस चैलेंज को हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, कि एक जीन आखिर अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है कि कब मेरे को काम करना है, कब मेरे को काम नहीं करना है, और व्हाट आर द फैक्टर विच आर एक्चुअली हेल्पिंग इट टू टू कंट्रोल, है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम इस रूम में आए और हमको गर्मी लग रही है तो हम एसी चलाएंगे, हमको गर्मी लग रही है पंखा चलाएंगे, हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितनी गर्मी है, इसमें मेरा काम पंखे से चल रहा है या एसी से चलेगा। ठीक है, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि डे है, काफी अच्छा उजाला है, हमको कुछ पढ़ना नहीं है, तो हमारे को बाहर की रोशनी काफी है, और हम देखेंगे कि भाई नहीं, आई हैव टू रीड समथिंग एंड दिस लाइट इज नॉट इनफ एंड आई मे स्विच ऑन वन लाइट। ठीक है, previously also I gave you one example. Suppose I said कि suppose your mother knows 50 type of parathas recipe, तो क्या 50 तरह के पराठे रोज बन जाते हैं आपके घर में? नहीं बनते हैं। तो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा पराठा बनेगा, या बनेगा भी कि नहीं बनेगा, पोहा बनेगा? तो हाउ आर वी डिसाइडिंग? तो वी आर डिसाइडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, कि भाई भूख कितनी है, टाइम कौन सा है, विच आवर ऑफ द डे इज दिस, और आज अब हमारे को मतलब जो नेक्स्ट मील है वो हैवी मील है या प्रीवियस मील वाज हैवी मील, तो हम डिसाइड करेंगे कि यार हल्का खा लेते हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि पराठा खाने की बजाय जो है पोहे खा लें, है ना। या हम डिसाइड करेंगे कि भूख कम है, या फिर हम कुछ और कारण से कि मतलब नेक्स्ट मील जो है उसका ड्यूरेशन कम है, तो हम ये तरह से डिसाइड करेंगे, या फिर हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि पराठा जो हम बनाना चाहते हैं उसका सामान ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या द पर्सन हु हैज टू ईट, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पराठा खाने में। तो हम कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट मील हैज टू बी मेड। अब तो छोड़ो छोटे मोटे घर है, अगर अंबानी साहब का घर, वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और हम जितना साल भर कमाते हैं उतना तो वो घंटे भर में कमा लेते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो क्या अंबानी साहब के घर में अगर मतलब जो कुक है, सब तरह के कुक है उनके वहाँ, कॉन्टिनेंटल बनाने वाले भी है, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, ये बनाना वो बनाना सब तरह के हैं, तो क्या उनके घर में सारे तरह का खाना रोज बन जाता है? इवन वो रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन होगा तब भी उसके वहां पे भी डिसाइड तो होता होगा ना कोई फैक्टर डिसाइड करता होगा कि भाई क्या करना। इफ वी गो टू ए बैंक, बैंक पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, है ना। वो एम्प्लॉय जो है अलग अलग दिन पे अलग अलग काउंटर पे बैठते हैं, किसी दिन वो पर्सन काउंट कैश पे बैठा होगा, किसी दिन वो सिर्फ हेल्पिंग काउंटर पे बैठा होगा, किसी दिन वो पीछे बैठ के केवल सिग्नेचर अथॉरिटी होगा, किसी दिन वो केवल क्या कहते हैं टेलर ऑपरेट कर रहा, और किसी दिन मे बी जस्ट सिटिंग ऑन दिस थिंग कि वो क्या कहते हैं कोई लॉकर ऑपरेट करना आए तो उसको हेल्प कर दे। तो व्हाट इज हु इज डिसाइडिंग कि वो क्या काम करेगा? तो वहां मैनेजर डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास में थिंकिंग पावर है। डू सेल हैव थिंकिंग पावर? डू सेल हैव थिंकिंग पावर कि वो डिसाइड करेगा कि ये करना है या नहीं करना है, कितना करना है कितना नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, क्यों करना है क्यों नहीं करना है ना। आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझिए कि किसी भी सेल के अंदर सारे के सारे जीन्स अवेलेबल हैं,
अगर मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी के अंदर अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम के अंदर 40,000 जीन्स होते हैं, तो ऑल 40,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सेल। आई के अंदर रॉड सेल में, कौन सेल के अंदर, स्टमक की गैस्ट्रिक मतलब ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड के अंदर, और क्या नाम से चीफ ग्लैंड के अंदर, लिवर की जो बाइल सिक्रेटिंग ग्लैंड है उसमें, पैंक्रियास की जो है क्या बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर, एंड मतलब हर सेल के अंदर वही 46 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। तो वो 46 क्रोमोसोम के अंदर ऑल 40,000 जीन्स आर अवेलेबल। देन हाउ ए सेल डिसाइड कि उसको कौन सी जीन्स को काम में लेना है और कौन से को काम में नहीं लेना है, और कब लेना है और कब नहीं लेना है, और कितना क्वांटिटी में लेना है और कितना क्वांटिटी में नहीं लेना। दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि कुछ जीन्स है वो जिंदगी भर काम करते हैं, और कुछ जीन जो है वो सर्टेन टाइम के लिए काम करते हैं, और कुछ जीन होंगे वो किसी सेल के अंदर वो कभी काम नहीं करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि स्टमक सेल के अंदर बाइल जूस तो बनता ही नहीं है, तो वो जीन क्यों काम करेगा, है? और गैस्ट्रिक सेल के अंदर सॉरी गैस्ट्रिक सेल से सॉरी लिवर सेल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना ही नहीं है, तो वो क्यों काम करेगा? वो जीन इज देयर बट इट विल नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस थी, इसको समझने में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? तो इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ए जीन, कि हाउ ए जीन विल बी रेगुलेटेड। जीन तो बना दिए, बना के रख भी दिए, और कहाँ रखे? हर सेल के अंदर है, क्रोमोसोम में, और सारे के सारे 46 क्रोमोसोम हर सेल में मिल रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स स्टेप है ना? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट द वेरियस लेवल, है ना? अगर आपने क्लास 11th के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, तो डिफरेंशिएशन के स्टेप के अंदर हमने पढ़ा था कि अप टू अ सर्टेन लेवल ऑल द सेल्स आर अलाइक, जब तक डिफरेंशिएट नहीं हुई है। जायगोट से सेल बनी है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाने लगती हैं, शुरू में सेल्स बन रही हैं, 2 सेल्स, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, ऑल द सेल्स आर अलाइक। ब्लास्टोमेट्स बन गए, सारी की सारी एक जैसी है ना? गैस्ट्रुला आ गया, मोरुला, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला आ गया, और उसके बाद कहीं जाकर के वहां पे डिफरेंशिएशन बिगन होने लगे हैं, 3 जर्म लेयर बनने लगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनती है, तब कहीं जाकर के वहां एक सर्टेन लेवल का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद वो अपना टिश्यूज बनाना शुरू करेंगे, तो ऑल द मोर डिफरेंशिएशन आएंगे। तब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम हमको कंटिन्यू करना है और कौन सा काम हमको रोक देना है। ठीक है, तो ये जो काम है ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस है, तो ये वेरियस लेवल पे चल रहा है। देखिए, कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये तो अपन ने पढ़ा है कि जीन एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, लेकिन कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, कितना क्वांटिटी में बनाएगा, कितने क्वांटिटी में नहीं बनाएगा, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। ठीक है, एंड इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी exerted at ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं होना, एक उस जगह पे रेगुलेशन। प्रोसेसिंग लेवल, कि कुछ चीज आरएनए बन गया, अब उसको प्रोसेस होना है कि नहीं होना है, स्प्लिसिंग करनी है कि नहीं करनी है, गलती से बन गया हो शायद, या कुछ और। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट टू द मैसेंजर आरएनए, कि वो जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना है उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, और फिर ट्रांसलेशनल लेवल के उसको ट्रांसलेशन करना है कि नहीं करना है, और कैसा करना है, कितना करना है। नाउ अभी मैंने आपको बताया एक मैसेंजर आरएनए, सपोज दिस इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यहाँ से घुस करके यहाँ से होकर के यहाँ तक निकल गया, प्रोटीन बन गया, फिर वही मैसेंजर आरएनए वापस घुस जाएगा, फिर वही मैसेंजर आरएनए तीसरी बार घुस जाएगा, फिर वही चौथी बार घुस जाएगा। ये कितनी बार करना है उसको, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू प्रोड्यूस। तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना? और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम समझ नहीं पा रहे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आया वो लैक ऑपेरॉन का है। व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे देता हूँ। लैक ऑपेरॉन, है ना, ये दिया है डायग्राम, ये रहा। ओके, व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? लैक ऑपेरॉन इज एक्चुअली
एक बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द चैप्टर ऑफ माइक्रोब. और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, जब आप उसको मिल्क में रखते हैं तो मिल्क के अंदर एक खास तरह की शुगर होती है, उसको कहते हैं लैक्टोज शुगर. लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड. ठीक है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में ब्रेक करना है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज. उसके लिए जो है 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है. 3 एंजाइम्स कौन कौन से हैं देखिए यहाँ. बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना. 3 एंजाइम जो हमको चाहिए वो कौन कौन से हैं. वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, एक परमीएज है और एक ट्रांसएसिटाइलेज है. ठीक है. क्वेश्चन है कि व्हेन दीज एंजाइम विल बी मेड एंड हाउ मच टू बी मेड एंड हाउ टू स्टॉप देयर फंक्शन. तो ये एक कॉम्प्लेक्स थिंग थी और फिर इसको स्टडी किया. तो इसको स्टडी किया तो क्या देखा कि दिस एंजाइम विल बी मेड ओनली इफ द बैक्टीरिया इज केप्ट इन द मिल्क. यहाँ मिल्क है और इस मिल्क के अंदर बैक्टीरिया गया है. तो जब बैक्टीरिया मिल्क के अंदर जाएगा तो इक्का दुक्का मॉलिक्यूल उसके अंदर घुस जाते हैं लैक्टोज के अपने आप से. जैसे लैक्टोज के मॉलिक्यूल घुसेंगे इट विल बूस्ट द प्रोसेस. और कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक कि सारे लैक्टोज खत्म नहीं हो जाए. और जैसे लैक्टोज खत्म हो जाएंगे दीज एंजाइम्स प्रोडक्शन विल स्टॉप एंड द प्रोसेस विल बी स्टॉप. कैसे हुआ इसको हम कल पढ़ते हैं. ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स का, कई बार 5 मार्क्स का. ठीक है. इक्का दुक्का डेफिनेशन और जोड़ करके और इसको 5 मार्क का बना देते हैं. अदरवाइज 3 मार्क का क्वेश्चन ये वेरी ऑफन पूछा जाता है. ठीक है. तो कल की क्लास में आप इसको समझिए. थैंक यू सर. फॉर टुडे चिल्ड्रन, गुड डे.